Okay ji, assalamu alaikum. How are you all? Fine. Fine, sir. Great. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be covering two things. Number one is acceleration due to gravity. Number two is terminal velocity. Okay. So these are very important topics, right? इसके conceptual सवाल बनते हैं और बड़े मजेदार सवाल बनते हैं, ठीक है? तो concept क्लियर करना बड़ा जरूरी है. So ये मैंने पहले क्यों नहीं कराया kinematics में, because before understanding these concepts we should be able to understand the concept of resultant force. अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, just to check your concepts, ठीक है? एक चीज मुझे बताएं कि so just to check your concept, मुझे बताएं, if I have a box and एक फोर्स लग रही है 7 न्यूटन upwards and एक फोर्स लग रही है 9 न्यूटन downwards, so what's the resultant force in this case? हाँ जी, क्या है resultant? 2 न्यूटन नीचे की तरफ. 2 Newton downwards. 2 न्यूटन downwards. This is a very simple and basic concept. अगर ये आप लोगों को clear है, I will move straight towards acceleration due to gravity. अच्छा, acceleration due to gravity is कि let's say मैंने aeroplane से कोई चीज फेंकी है, ठीक है? I brought something from an aeroplane and assuming that the only force acting on the object is its weight. मैं कहता हूँ और कोई फोर्स नहीं लग रही, assume ऐसा environment है and only force जो लग रही है उस पे weight है. So let's say वो object 60 kg का है, ठीक है? So what will be the weight? Do you know the formula for weight? आगे आएगा हमारे पास, but it's very basic. F equals to A. Mass into 10. Mass into A. W is equal to mg. So weight, the W is weight, M is mass, and G is क्या होती है? Gravity 9.8. Gravitational field strength. इसका proper नाम ये है, ठीक है? Not just gravity, right? Right? Gravitational field 10 होती है अर्थ पे, ठीक है? It's actually 9.81 something. But O levels के लिए आप 10 ही assume करिए, so unless stated otherwise in any question, आपने 10 ही assume करनी है, it's written in your syllabus, ठीक है? So the value for gravitational field strength is 10 Newton per kg. That means अगर 1 kg का मास है तो उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी? 10 Newton. ठीक है? और जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो वेट बढ़ता जाएगा as per the mass, ठीक है? So let's say 60 kg है तो 60 kg पे कितनी फोर्स लगेगी? वेट according to this 600 Newton. very good, 600 न्यूटन. तो मैं कह रहा हूँ कि और कोई फोर्स नहीं है इस पे, सिर्फ वेट एक्ट हो रहा है. So what will be the resultant force in this case? 600 Newton down. ठीक है? And there is a formula F is equal to X. ये भी काफी लोगों को पता होगा, ठीक है? This is Newton's second law and it states that कि acceleration जो होती है ना आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड करती है रिजल्टेंट फोर्स. So this F in this F is equal to M is what? Resultant force. बात आ रही है समझ? ये हमेशा रिजल्टेंट फोर्स होगी, नॉट जस्ट अ सिंगल फोर्स. अक्सर बच्चे गलती करते हैं, राइट? एंड सर आपकी M is वॉइस कम mass. ज्यादा हो रही है. क्या हुआ? सर आपकी वॉइस कम ज्यादा हो रही है. अब सही है? Is it better now? Yes sir. Yes sir. And M is mass is acceleration. ठीक है? न्यूटन सेकंड लॉ डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे,
एंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बल्कि कल के लेक्चर में कर लेंगे इंशाल्लाह, बट जस्ट टू लेट यू नो, एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन रिजल्टेंट फोर्स, राइट? एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कितनी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, उस पर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन हमेशा उसी की डायरेक्शन में होती है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है? सो इफ आई से द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज द वेट, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 600 600 न्यूटन 600 न्यूटन। सो अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं इसे, सो 600 इज इक्वल टू व्हाट? मास कितना है? 60 60 into a, ए finding the acceleration, right? So acceleration will be 600 divided by 10 60, मीटर पर सेकंड 10 स्क्वायर meter per second square, right? अच्छा, इससे हमें पता लगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट, अगर उस पर कोई सिर्फ the only force acting is weight या resultant force is equal to weight, तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा 10 होगी, चाहे उसका कितना भी मास हो, कितना भी वेट हो। सही है? यस सर। ठीक है? सर ये लाइन Let's- दोबारा बता सकते हैं? हाँ, देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, then the acceleration will always be 10 meter per second square, which is called the acceleration due to gravity. इसी को acceleration due to gravity कहते हैं। एंड इसमें कोई मैटर नहीं करता अगर आपका मास 60 kg हो या 60 टन हो। ठीक है? कैसे? लेट्स सी, अगर मैं ऑब्जेक्ट का मास 60 टन कर देता हूँ, 60 टन is 60,000 kg, ऐसा ही है? यस सर नाउ उसका वेट कितना होगा पता है? 6 लाख न्यूटन 600,000, 6 लाख यस न्यूटन। सेम यही फॉर्मूला लगाए इस पे। व्हाट्स द Yes, रिजल्टेंट sir. फोर्स? 10 per second. व्हाट्स द 10 meter per रिजल्टेंट second फोर्स? square. 600,000 is equal to 60,000 into A. Again, you will divide 600 by 60,000, so you will get 10 meter per second. Clear? सर इससे क्या पता चला रिजल्टेंट हमेशा फोर्स हमेशा 10 मीटर पर सेकंड होगा। हाँ, अगर only force acting is weight। और ऐसा सिनेरियो कब होगा? डाउनवर्ड्स होगा। एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। हाँ, वेरी गुड। वैक्यूम जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, और एयर रेजिस्टेंस कब नहीं होती? वैक्यूम में। वैक्यूम। वैक्यूम में। वेरी गुड। सो अगर लेट्स से अगर मैं कहता हूँ इफ यू हैव अ मेटल बॉल, बोलिंग बॉल है, ठीक है, और आपके पास एक फेदर है, ठीक है, समझ रहे हो कि क्या बता रहा हूँ? एक बोलिंग बॉल है और एक फेदर है। उसको नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं किसी हाइट, ज्यादा हाइट से फेंकता हूँ, कौन जमीन पे पहले पहुंचेगा? बॉलिंग बॉल। बॉलिंग बॉल बोलिंग बॉल। और अगर ऐसी जगह पे फेंकूं जहाँ एयर रेजिस्टेंस ना हो, सर वो सर उड़ेगी एक ही नहीं बॉल। टाइम पे गिरेंगे साथ में। नहीं, हाँ साथ ही गिरेंगे वो। साथ ही गिरेंगे। सर पक्की बात है? सर क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी Bowling- लग रही तो वो साथ ही करेंगे ना। बॉलिंग बॉल गिरेगा सर हाँ, ये देखो आ गया ना तजाद। ठीक है? सो लॉजिकली क्या होना चाहिए, जो अभी कॉन्सेप्ट गेन किया हमने, कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना नहीं है और सिर्फ ओनली फोर्स एक्टिंग इज वेट, और सेम हाइट से दोनों को फेंक रहा हूँ वैक्यूम में, क्या होना चाहिए? साथ ही गिरने चाहिए। साथ ही गिरने चाहिए। ठीक है? एंड फॉर दिस आई विल शो यू अ वीडियो। ठीक है? साथ गिरेंगे बिकॉज, ठीक है, हाँ, यस, एंड समवन वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। सर आई वाज ओके, पूछें। सर both are having the same acceleration but the Yes. mass of bowling ball is greater, so why does it not come first? देखो, मोशन क्या डिफाइन करती है? योर एक्सेलरेशन डिफाइंस द मोशन। ठीक है? एक्सेलरेशन क्या डिफाइन करती है? कि वेलोसिटी किस हिसाब से बढ़ेगी, राइट? तो अगर दोनों की Yes, वेलोसिटी yes 10 है, sir ठीक है, तो दोनों की एक्सेलरेशन अगर 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस एवरी सेकंड both
दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? So if there is no Yes, air sir. resistance, यही तो concept हमने सीखा है। If the only force is acting is of gravity or the weight क्या होता है? Pull of gravity होता है, right? Weight Yes, is sir. basically lets you know कि gravity कितना pull कर रही है object को अपनी तरफ, ठीक है? So we will study in detail weight क्या होता है, mass, weight and density, but हमने prove किया mathematically first कि 60 kg का mass and 60,000 kg का mass दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। सो bowling ball and feather चाहे मास में कितना भी डिफरेंस हो, if the only force is weight, you will get the acceleration due to gravity, and that will be 10 meter per second square on earth. Clear? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Clear. जी जी बोलें। सर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो मतलब उसका वेट कितना भी हो क्या बोलते हैं गिरेंगे दोनों साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अगर ये रेजिस्टेंस या और कोई फोर्स नहीं है, the only force is weight, तो साथ ही गिरेंगे भाई हमेशा, अगर सेम हाइट से फेंके गए, समझ ठीक है? Any other questions? No. Now let's move to terminal velocity. ठीक है? So we have covered the first concept, that was acceleration due to gravity. And for terminal velocity, I would ask you to join back again, ठीक है, ताकि हमारी interruption ना आए।